students, now we solve some numerical problems of chapter 3rd. There is a numerical problem 12. Numerical problem 12. So what is problem? In xy plane, this is origin, this is x-axis, this is y-axis. There is 3 points A, origin and B. In this problem, there is given a charge minus q is situated at A, and the coordinate of this point is minus 0 minus A. 0 minus A. Clear? And coordinate of this point is 0 A. And there is charge plus q, and at origin there is also charge plus q. At a distance r, there is a point P. At where we have to find out electric potential due to these three charge system. Clear? So this angle is theta. We have to find out electric potential at P. हमें point P पर electric potential find out करना है. Clear? Then we can assume, क्या assume कर सकते हैं कि इसको एक बार माइंड से रिमूव कर दें. So there will be AB, which is an electric dipole. Why? This is charge, this charge is minus q, this is plus q. तो इसको यदि हम माइंड में से रिमूव कर दें तो AB किसकी तरह बताएगा? AB जो है वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा. एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल? द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P इज r थीटा, और पोजीशन ऑफ पॉइंट P कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय r एंड थीटा. r डिस्टेंस है, थीटा एंगल पे ये पॉइंट P है. नाउ so what is solution? Electric potential at P due to electric dipole system AB, that is V1 equal, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से r थीटा पोजीशन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन हम कर चुके हैं, दिस विल बी kp cos theta upon r square. In this situation, r is very less than in comparison of A, so the electric dipole system will be short. So there is condition, r is very greater than in comparison of A, then you can write V1 equal kp cos theta upon r square. This is equation first. ये डेरिवेशन आपका किया हुआ है. Now अब केवल हम AB इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिमूव कर दें माइंड में से, और सिर्फ इस ओरिजिन पे प्लस q की वजह से r डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो ये आर्टिकल भी किया हुआ था. टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. सो यू कैन राइट this equation can be written as also V1 equal K into Q into 2A cos theta upon R square. What is P? Electric dipole moment. Q multiply by 2A. This is equation first. Now अब आप इस पे आ जाइए. प्लस Q की वजह से, चार्ज की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल. तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P
due to charge Q at O. Suppose this is V2 and formula is KQ upon R square. KQ upon R square. This is equation सेकेंड. तो एक बार आपने क्या अज्यूम किया कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से पी के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा, इसको आपने कंसीडर नहीं किया. फिर आपने एक बार क्या कंसीडर किया कि पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा. क्लियर. नाउ टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P, V equal, this will be V1 plus V2. This is equation third. Now from first, second and third, what is the result? V equal value of V1 K Q into 2a cos theta upon R square plus KQ upon R square. KQ upon R square. Sorry, this will be upon single R. There will be single R. Clear? But due to electric dipole, there will be R square. जो चार्ज है तो ये इस तरीके से होगा. तो KQ upon R. Now K will be common. V equal K into Q into 2a cos theta upon R square plus Q upon R. This is final result. So this is total electric potential at P. तो फिर ये जो न्यूमेरिकल है 12 का, वो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर. Now you can note it. We take next numerical problem 13. Numerical problem 30. So what is 13 numerical problem? There is an equilateral triangle. So suppose this is an equilateral triangle having side A and A, B, C. क्लियर. तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. अब इसके जो ये वर्टिसेज हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं, इनके ऊपर आपको चार्ज पुट करना है. तो वो चार्ज कितना कितना पुट करें. सपोज दिस इज Q1, देयर इज दिस इज Q2, सपोज देयर इज Q3, बट दिस इज गिवन. क्या, व्हाट इज Q1? Q1 is Q, this is 2Q, this is 4Q. तो आपको एक सिस्टम बनाना है तीन चार्ज का, Q, 2Q और 4Q. यह सिस्टम किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो कॉर्नर्स हैं, उन कॉर्नर्स के ऊपर या वर्टिसेज हैं, उनके ऊपर आपको ये चार्ज पुट करना है. तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस सिस्टम को बनाने के लिए. So you have to find out amount of work done in bringing this, in making this charge system. So given Q1 Q, Q2 2Q, Q3 4Q, site. This is R12, 1 and 2 के बीच. This is R23 और this is R13. क्लियर. तो ये चीज भी हमें गिवन है. R12
this is equal to A, R23 A, R13 this is A. But we know that work done or electrostatic potential energy of the charge system. Solution. तो work done W equal KQ1 Q2 upon R12 plus KQ2 Q3 upon R23 plus KQ1 Q3 upon R13. This is electrostatic potential energy or work done in making this charge system. So there are all values is present, Q1 Q, Q2 2Q, Q3 4Q. So we can put these values. W equal K into Q1 Q into Q2 2Q upon R12, this is equal to A, R12 A. In second case, Q2 Q3 plus K Q 2Q into 4Q again A plus third step Q1 Q Q3 4Q upon A. So we can write as W equal 2KQ square upon A plus 4 to the 8 8KQ square upon A plus 4KQ square upon A. So what is total? KQ square upon A? 8 to 10, 10 or 14. So W equal 14KQ square upon A. This is final result. So this is a simple numerical in which you have to find out work done in making this charge system. We can use this formula. चलिए, तो ये तुम्हारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 13 हो गया. Now you can note it. We take next numerical problem. So next numerical problem is 14. So what is 14 problem? ये कोई दो पॉइंट हैं A and B. This is O point, which is origin. Now the coordinate of this point in centimeter is -9 0 0 and coordinate of this point is +9 0 0. Clear? So we can say that the distance between A and B, which is equal to R, equal to 18 centimeter. Why? This distance is 9 centimeter from origin. So this distance of point B is also 9 centimeter. So there is total distance 18 centimeter. Now there is 7 microcoulomb charge or there is -2 microcoulomb charge. Clear? ये आपको गिवन है, तो फिर हम यहां लिख सकते हैं गिवन Q1 equal 7 microcoulomb, 7 into 10⁻⁻⁶ coulomb. Q2
-2 microcoulomb. This is equal to 2 into 10 to power -6 coulomb, and distance between these charges is 18 centimeter. This is equal to 18 into 10 to power -2 meter. This is a mathematical situation of this numerical problem. Clear? कि आपको ये A और B पर 2 पॉइंट चार्ज दे रखे हैं जिनके कोऑर्डिनेट सेंटीमीटर में इतने हैं। अब आपको बताना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है कि व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन कितना होगा इसको बनाने के लिए, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसको हम U भी कह सकते हैं। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे देखिए। सॉल्यूशन, we know that electrostatic potential energy of 2 point charge system, we know that electrostatic potential energy of 2 point charge system U equal K Q1 Q2 upon R। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, तो ये मैं फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं। ठीक है, तो कितनी आई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज की वजह से K Q1 Q2 upon R। Now you can put value K 9 into 10 to power 9, Q1 7 microcoulomb, so 7 into 10 to power -6 coulomb, Q2 -2 microcoulomb, तो 2 into 10 to power -6 और ये माइनस, और अपॉन डिस्टेंस 18 into 10 to power -2। क्लियर? ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, अब ये वैल्यूज पुट कर दी तो सॉल्यूशन करें। 9 2 जा 18, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या रह गया U इक्वल -7 into 10 to power 9, 10 to power -6 6 12 है, और 10 to power +2, 9 to 11, so U will be -7 into 10 to power -1, 9 to 11, -12 में से 11 गया -1, U equal -7 upon 10 equal -0.7। So what is unit of energy? Unit of energy is joule, so we can write joule. The potential energy of this system will be -0.7 joule. Clear? You can note it. Now we take next numerical problem. But there is second part of this question. So what is second part? This is first part. In second part क्या कहा गया है कि यदि इन दोनों चार्ज को एक दूसरे से इन्फिनिटी पे लेके जाए तो फिर उस केस में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो जब इनको हम एक दूसरे को इनफाइनाइट पे लेके जाएंगे तब हमें जो है इसका ठीक पॉजिटिव में वर्क डन करना पड़ेगा। हमारे द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो पॉजिटिव में होगा। तो फिर हम ये कहेंगे सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन और एनर्जी, द अमाउंट of energy, the amount of energy required to separate these charges at infinity will be कितनी होगी 0.7 जूल पॉजिटिव। इसका ठीक पॉजिटिव कर, ये काम सिस्टम ने किया, लेकिन सेपरेट करोगे क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इन पॉजिटिव और नेगेटिव को आपको अट्रैक्शन के अपोजिट
काम करना पड़ेगा, और वो वर्क डन का कितना करना पड़ेगा, वो इतना ही करना पड़ेगा जितनी इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है। तो उसके लिए हम ये पॉजिटिव वर्क डन जो है हम करेंगे, जिससे ये चार्ज सेपरेट होंगे। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नेक्स्ट पे आते हैं 70। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 70। So what is this problem? What is problem? Numerical problem 70. In this numerical, आपको गिवन है कि कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड जो है वो हमारे पास में R है। तो गिवन है this is an equilateral triangle of side R, ठीक है। This point A, this B, this is C. So we can assume this is equal to R12, this is equal R23, this is equal R13. But we put charge plus q plus 2q or xq, plus q plus 2q plus xq. There is three charges. Suppose q1 equal q, this is q2 equal 2q, or this is q3 equal, this is q3 equal xq. तो फिर गिवन क्या था, q1 इक्वल q, q2 इक्वल 2q, q3 इक्वल xq, r12 इक्वल r, r23 इक्वल r और r13 इक्वल r। क्लियर? ये हमारे पास में जो है ये गिवन है ना। कैसे सॉल्यूशन करेंगे? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ x व्हेन u इक्वल 0। इस चार्ज को ये कितना टाइम्स किया जाए कि इसकी टोटल एनर्जी क्या बन जाए, इस सिस्टम की एनर्जी 0 बन जाए। तो फार्मूला U बराबर क्योंकि टोटल पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ क्या है? U की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। Q1 की वैल्यू कितनी है? Q, तो K Q इंटू में 2Q अपॉन R प्लस K 2Q इंटू में Q3 XQ अपॉन R प्लस K Q इंटू में XQ अपॉन में R। तो फिर एक बार मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं कि इस सिस्टम को बनाने के लिए, और सिस्टम भी इस प्रकार से बनाया जाए 3 चार्ज का कि इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए, तो उस केस में इस x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए कैसे करते हैं। 0 बराबर
2k² अपॉन r प्लस 2xk² अपॉन r प्लस xk² अपॉन r। देखिए हमने इस तरीके से इनकी मल्टीप्लाई करके लाएंगे। नाउ वी कैन डिवाइड बोथ साइड बाय kq² अपॉन r। यदि हम इस स्टेप को दोनों साइड से kq² अपॉन r से डिवाइड कर दें तो देखिए क्या आएगा आपके पास, दिस विल बी कैंसिल आउट। सो व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट इज 2 plus 2x plus x, this is equal to 0। clear? now 3x plus 2 equal 0, 3x इक्वल -2 और x की वैल्यू आपको चाहिए x इक्वल -2/3। इसका मतलब x की वैल्यू आपको माइनस की लेनी पड़ेगी, कितनी? -2/3 लेनी पड़ेगी। तो फिर इस वैल्यू के लिए ये जो आपके पास सिस्टम बना उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगी। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपको ये कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो ये वर्टिसेज हैं ए बी और सी, उसके ऊपर इस ए बी सी जिसकी साइड आर है, इसके ऊपर हमें ये चार्ज क्यू 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 2q और xq रखने हैं। और रखने भी ऐसे हैं कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की क्या बननी चाहिए? 0। तो उस केस में आपको x का मान क्या रखना पड़ेगा, x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी। क्लियर? ये तो थी उस मैथमेटिकल सिचुएशन। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल जो एनर्जी है या तीन चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को हम डेरिवेशन में भी किया था हमने इसे, तो हम इस तरीके से उस फार्मूले को लिख सकते हैं Q1 Q2 Q2 Q3 और ये जो वैल्यूज हैं आपके पास में ये सारी अवेलेबल हैं। यदि हम इन वैल्यूज को हम रख दें और रख करके और एक कैलकुलेशन कर लें तो एक सिंपल सी यहां मैथमेटिक्स का हम यूज करते हुए ये x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से तुम्हारे पास में ये चैप्टर जो थर्ड है इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो जो टिपिकल और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने करवा दी हैं। आप खुद भी प्रैक्टिस करती रहिए, साथ ही साथ जो भी चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं उन चैप्टर के टेस्ट की प्रिपरेशन भी साथ साथ करते जाइए, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं है कि आपके जो है वो टेस्ट जो है क्लास के सिस्टम के हिसाब से जो है लिए जा रहे हैं। तो इस टाइम में आप कोई भी जैसे चैप्टर है उस चैप्टर के आपने 5 क्वेश्चन तैयार कर लिए, 5 क्वेश्चन आपने पहले लिख लिए, पहले पूरा आपने चैप्टर तैयार कर लिया। चैप्टर तैयार करने के बाद में उसमें से 5 क्वेश्चन आप जो है हार्ड टू सिंपल उन क्वेश्चंस को लिख लीजिए, हार्ड टू सिंपल। ठीक है? अब उन 5 क्वेश्चन को लिखने के बाद आप उनको बिना देखे रफ कॉपी में और सेल्फ डिसिप्लिन के तहत आप उनके आंसर लिखिए और आंसर लिखने के बाद जो है उनको आप उनके आंसर को टैली कीजिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस केस में जो है वो अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहिए। बार बार आप लिख करके उनको देखोगे, उनके टेस्ट लोगे, सेल्फ जो है जजमेंट करोगे कि हाँ ये मेरा सही है, ये मेरा गलत है, गलत को फिर से आप देखोगे तो फिर उसमें थोड़ा सा क्या है कि आपका जो है उस क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएंगे। और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको, ये तो मैंने डिफिकल्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको बताई हैं, जो आपके पास बुक्स हैं उसके अंदर और कुछ प्रॉब्लम्स मैंने छोड़ी हैं प्रैक्टिस के लिए कि आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। यदि वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं तो आप उनको अंडरलाइन कीजिए और उनको जो है बाद में हम समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। तो इस तरीके से जो है आप लगातार जो है वो प्रयास करते रहिए। और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर चलेगा इसी से अगले वाला 4th चैप्टर चलेगा। नोट्स वगैरह जो है इनके आप साथ साथ तैयार करते रहेंगे। नोट्स जो है वो नीट एंड क्लीन आप बनाएंगे। ठीक है? इस तरीके से जो है
आप तैयारी करते रहिए। थैंक यू।